صبيحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري जाने वालों दरिया पास पे जब तुम जाना ये अरीज़ा मेरी मौला को सुना कर आना जाने वालों दरिया पास पे जब तुम जाना ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम कुछ नहीं लाना फकत इज़्न ज़ियारत लाना ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना जाने वालों दरिया पास पे जब तुम जाना ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना रो रही है तुम्हारी सकीना लौट आओ चचा कमा से प्यास शिकों से अपने बुझा लूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी और कुछ रोज प्यासे रहे भी तो क्या प्यास से बढ़ के गम आप का है चचा कोई देगा अब लतश की सदा लौट आओ चचा कमाने प्यासे बच्चों को मैं खुद मना लूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी पानी आए न आए मुझे गम नहीं पर ये फुरकत यतीमी से कुछ कम नहीं यूं समझ लो चचा तुम नहीं हम नहीं लौट आओ चचा कहाँ से मैं न शिकवा कभी लब पे लाऊंगी अब मैं पानी न मांगूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी की ज़ंजीर पर हाँ ये नार रहेगा लबों पर मगर लौट आओ चचा कमा से प्यासा रहना मैं खुद को सिखा लूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी चल बसी कैद खाने में वो गमज़दा गुस्ले मैयत को पानी मयसर न था आई लाशे सकीना से उस दम ज़दा लौट आओ चचा कमा से मैं बिना गौस्ल के ही सिधारूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी अब मैं पानी न मांगूंगी रो रही है तुम्हारी सकीना रो रही है तुम्हारी सकीना
देश बड़ा लिखे बादोला बहुत राधे हो लिखे बादोला बहुत राधे लब लिखिया पहले समंदर बांटता है। खुदा से मांगनी है तो 14 की मोहब्बत मांग, ये लंगर तो कलंदर बांटता है। तुम लोग ही सेव मुसलमान से बस नस्ल यजीद पर लानत
पाबंदी हुई अगर जन्नत में, हम जन्नत में भी जाने से इनकार कर दें। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना नबीना व तबीबी नफुसना व शफी'i सुन्ना मौलाना बिल कासिम मोहम्मद وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقال اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جو نظر نہ آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے، جو سوچ وچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا کہ جب نہ یہ برجوں والا آسمان تھا، نہ اندھیری راتیں تھی، نہ ٹھہرا ہوا سمندر تھا، نہ اسبل کھانے والی مخلوق تھی، وہی اس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہمارا تمام درود و سلام محمد و آل محمد بغیر ہمارے تمام اعمال بھی بیکار ہیں اور تمام عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ تو وہ پاک پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جنو انس تم پروردگار عالم کی کن کن نعمتوں کو لاؤ گے۔ خزانے پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم جتنا شمار کر بھی نہیں سکتے، ہم گن بھی نہیں سکتے ان نعمتوں کا۔ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ایک نظر ہم اپنے جسم پہ اپنے بدن میں دیکھیں تو آنکھیں نعمت ہیں، بال نعمت ہے، ناک نعمت ہے، یہ کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ پاؤں نعمت ہے، اور اگر ہم جسم کے اندر دیکھیں تو بھی نعمت ہی نعمت ہے۔ اور اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو ارد گرد میں بھی ہمارے ماں باپ نعمت ہیں، ہمارے بھائی بہن نعمت ہیں، ہمارے پڑوسی نعمت ہیں، ہمارے اولاد نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اولاد میں پروردگار عالم نے دو چیزیں عطا کر دی، ایک نعمت دے دی، ایک رحمت دے دی۔ اگر رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو سمجھو نعمت ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو سمجھو رحمت ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نعمت کا حساب ہے، رحمت کا حساب نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی، رحمت ہے، لیکن ہم نے اس کو جمع کر کے جب نلکوں سے بہانا شروع کر دیا تو وہ نعمت ہے، حساب دینا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر دی ہیں، لیکن جب وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ نعمت بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم بیٹیوں پہ دیکھا جائے تو بیٹی اتنی نعمت ہے،
अज़ान मोहतरम, और किसी के घर में अगर 7 बेटियां अगर अता कर दे तो क्या ही बात है कि कहते हैं कि उसके घर में जन्नत का दरवाजा खुल जाता है माँ बाप के लिए। अज़ान मोहतरम, और ये 7 जुमला कितना खूबसूरत है कि अगर खाने काबा के तवाफ देखें तो 7 हैं, कुरान में मंजिल देखें तो 7 हैं, हफ्तों में अगर दिन देखें तो 7 हैं, और जमीन में तह देखें तो 7 हैं, आसमान पे आसमान देखें तो 7 हैं, और जन्नत के दरवाजे देखें तो 7 हैं। जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद कर दे, जो बेघर है उनको घर अता फरमा, जो बेज़र है उनको ज़र अता फरमा, और जो कैद में है उनको रिहाई दे। परवरदिगार आलम, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं और अगर उनके नसीब में बेटे अच्छे बेटे हैं तो उनकी आगे जाकर उनकी रहनुमाई कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, तो परवरदिगार उनको बेटी अता परवरदिगार आलम। और जितनी अगर जिनकी बेटियां हैं तो परवरदिगार आलम उनका नसीब इतना अच्छा और कुशादा फरमा कि उनको देख कर सब रश करें। परवरदिगार आलम, बीबी सैयदा के सदके में, बीबी ज़ैनब के सदके में हमारे पर्दों को सलामत रखें परवरदिगार आलम। और आज बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, आज 27 रजब है, तमाम अमाल भी लोगों ने किए होंगे, तो अज़ान मोहतरम सब थके हुए भी होंगे क्योंकि रात को इबादत भी की है। तो अज़ान मोहतरम अब मैं मसाइल की तरफ आऊँगी कि आज जनाब अब्बास का मुझे अब्बास कौन? अब्बास उम्मुल बनीन के बेटे, उम्मुल बनीन मौलाए कायनात की दूसरी सौजा। जब वो ब्याह कर आई थी तो उनका नाम फातिमा था, लेकिन उन्होंने कभी अपना नाम फातिमा नहीं कहलवाया, क्योंकि मैं अगर फातिमा कहलवाऊंगी, उनका कहना था कि अगर मैं फातिमा कहलवाऊंगी तो बीबी सैयदा कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि मैं कनीज हूँ। अज़ान मोहतरम, और जब उन्हें एक अब्बास जैसा बेटा मिला तो अब्बास से कहती हैं कि ए अब्बास, कभी इमाम हसन और हुसैन को भाई मत कहना, कि हमेशा आका कहना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई नहीं हैं, ये तुम्हारे आका हैं। तो फरमाया कि अम्मा क्योंकि वो मेरे भाई नहीं हैं? कहा बेटा वो सैयदा के बेटे हैं, वो सैयदा के बेटे हैं और आप मेरे बेटे हैं, और मैं एक कनीज़ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इमाम हसन और हुसैन को बेटा भाई बोले। बस अज़ीज़ान मोहतरम फरमाती हैं कि हमेशा जब तक जिंदा रहो अपने भाई को आका बोलना। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया तो बशीर ने सदा दी कि हुसैन मारे गए। बस जब ये आवाज़ जनाब मौला अब्बास की वालदा को पहुंची तो वो कहती है कि अपने पोते को हाथ बुलाया और अपने पोते को हाथ पकड़ के फरमाया कि बेटा मुझे मस्जिद नबवी में ले चलो, कि वहाँ सुनानी आई है। बस एक मर्तबा बशीर कहती है कि तू आवाज लगा रहा है, तू ऐलान कर रहा है कि हुसैन मारे गए। कौन हुसैन मारे गए? तो बशीर कहते हैं कि अली का चैन मारा गया, फातिमा का नूरे नजर मारा गया, रसूल के जानशीन मारे गए। बस अज़ादारों, बीबी उम्मुल बनीन फरमाती है कि मैं नहीं मानती कि वो कैसे शहीद हो सकते हैं कि मेरा बेटा अब्बास जिंदा हो और हुसैन मारे जाए। फरमाया बीबी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि पहले हुसैन नहीं कि पहले अब्बास मारे गए, पहले अब्बास मारे गए फिर हुसैन मारे गए। तो कहती है कि मैं ये नहीं मानती कि वो शख्स इतना बहादुर था कि जो 2 उंगलियों से एक नेज़े को जमीन पे गाड़ देता था और वो शहीद हो गया। कहा नहीं बीबी, आप ये सुने कि जब मेरे मौला पे गुर्ज लगा है तो दोनों शाने कट चुके हैं। खोल के पुरसा दीजिएगा कि ना
आंसू निकल गए। बीवी ने गुस्सा कबूल किया। बस अज़ादारो जब शब आशूरा आए हैं मौला गाजी अब्बास और फरमाया भैया मुझे जाने की इजाजत दे दो। फरमाया ए अब्बास मैं इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरे लश्कर के अलमदार हो। बस अज़ादारो आप मेरे लश्कर के अलमदार हो। बस जैसे ही मेरे मौला अब्बास ने हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा देखा आते हुए फरमाया भैया आका अब तो असहाब के लाशें आ रहे हैं। अज़ादारो बस मेरे मौला फरमाते हैं कि मुझे इजाजत दे दें। फरमाते हैं तो भैया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि आज आप मेरे लश्कर के अलमदार हो। बस अज़ादारो जैसे ही मेरे मौला ने अब देखा एक नन्हे दो शहीद लाशें आए हैं फरमाया आका अब तो इजाजत दे दीजिए कि अब तो गोदों के बालों की लाशें आ रहे हैं। बस अज़ादारो गुस्सा दिल में बोल ना कीजिएगा। बस मेरे मौला ने इजाजत नहीं दी। सर को झुकाया खैमे से बाहर निकले। एक जानब देखा एक जगह सकीना है जो मश्क लेकर मश्क को हाथों में लिए हुए है। कभी गले में लगाती है तो कभी लबों पे लगाती है कि शायद कहीं ठंडक मिल जाए। बस अज़ादारो आए उनको कह फरमाते हैं बीबी के प्यास लगी है। फरमाया हाँ चचा जान बहुत प्यास लगी है। बस एक मर्तबा गोद में उठाया और उठा के चले हैं हुसैन के खैमे में। आए हैं तशरीफ लाए और फरमाया आका अब तो इजाजत दे दीजिए। बस मेरे मौला हुसैन ने देखा कहा भैया बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। बस अज़ादारो आप बीबी सकीना से फरमाया कि सकीना भेज तो रही हो अपने चचा के पास लेकिन याद रखना एक बार बहुत पछताओगी। बस अज़ादारो मेरे मौला ने फरमाया जाओ इजाजत दे दी अब्बास जाके अलविदा कर लो ज़ैनब से अपनी बहन से विदा ले लो। बस चले हैं मेरे मौला बीबी ज़ैनब के खैमे में आए और फरमाया बहन इजाजत दे दीजिए शहजादी इजाजत दे दीजिए। बस अज़ादारो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने अपनी दोनों बाहों को गले में डाला और मौला गाजी से लिपट गई और फरमाती है रोकर जानते हैं क्या फरमाती है। एक मर्तबा कहती है एक मर्तबा मैं अपने बाबा के पास बैठी थी और मेरी चादर कलाइयों से हट गई थी तो मेरे बाबा ने मेरी कलाइयों को चूमना शुरू किया और फरमाया कि ज़ैनब एक वो दिन भी आएगा कि जब तुम्हारे हाथों में रस्म बसेगी तुम्हारे सर से चादर को छीन लिया जाएगा। बस अज़ादारो फरमाती है अब्बास मैं जान गई कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब मेरे हाथों में रस्म बनेगी और मेरे सर से चादर को छीन लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अरबी वल अजम या अबुल हसन या अली इब्न मूसा गाज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व साहिब असर व ज़मान अस्सलामु अलैकुम खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैकुम मज़हर अल ईमान अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजा व सल्लल्लाहु तआला मखरजा